Hello dear students, myself Shaili Gurwani. Welcome to our YouTube channel Career Planet. Today we will solve our NTA paper number 84 for NEET. So, question number 1 is IUPAC name of the complex. Complex we have platinum, NH3 whole 2, Cl, NH2CH3 and Br. So, we have to write its IUPAC name. So, first of all student, find the oxidation state. The complex is platinum, NH3 whole 2, Cl, then NH2, CH3 and after that Br. Oxidation state of platinum, X मान लिया हमने, then ammonia is neutral, then 2 into 0, Cl is -1, NH2CH3 is methenamine. So methenamine, a neutral ligand. So oxidation state will be 0 and Br is -1 and the total complex is neutral. So we will find X equals to 2. Now what is the IUPAC name? Then first write the name of ligand in alphabetical order. Then NH3 is amine, AMM. Then we have 2 amine, then diamine. Cl is chlorido. Then methylamine या methenamine, then metal name platinum, oxidation state is second and finally we will write simple anion which is bromide. So its name should be diamine, chlorido, methenamine, platinum, second and bromide. So correct answer is diamine, chlorido, alphabetical order है आप check करो, then methenamine, platinum, second bromide. So correct answer is third option, option C. Next question is oxidation number of rubidium in Rb2O, Rb2O2 and RbO2 can be given respectively as. So student, Rb2O is rubidium oxide. This is rubidium oxide. Here रुबीडियम अगर आप x मान लेंगे तो 2x ऑक्साइड -2, then you will find x equals to 1. Rb2O2, this is rubidium peroxide. Rb2O2, तो आपको पता है peroxide में O2 -2 means Rb2 + 2. So again you will find x equals to 1. And next one is RbO2. This is rubidium superoxide. So superoxide means O2 -1. So rubidium is +1. So in all these cases, oxygen have different oxidation state, but rubidium have same oxidation state, that is +1. So correct answer is +1, +1 and +1. So moving to question number 3. Question 3 is for coagulation of arsenious sulfide salt, which one of the following salt solution should be will be most effective? So students, arsenious sulfide salt As2S3. Arsenious sulfide salt is negative salt. So to coagulate this, to precipitate this, we need positive ion. So आपको positive ion चाहिए, cation चाहिए. Now apply Hardy-Schulze rule. Hardy-Schulze rule क्या कहता है? Greater the valency, greater will be coagulation. तो ऐसा कैटायन ढूंढो जिसमें वैलेंसी क्या हो? मैक्सिमम हो. It should have maximum positive charge. So first option में AlCl3, we have Al plus 3. Second में NaBr means Na plus barium chloride, barium plus 2. Sodium phosphate means sodium plus. So according to Hardy-Schulze rule, to precipitate a negative salt, cation should have maximum valency. So correct answer will be AlCl3. Next question is question number 4. In the following reactions, products A and B respectively are NaOH. Student, note here, hot and concentrated NaOH reacts with chlorine, A plus side product, and calcium hydroxide dry reacts with chlorine, B plus side product. So we have to find A and B.
So students, remember one thing, when there is NaOH and Cl2, when there is halogen in presence of hot and concentrated medium, then halogen shows disproportionation. It converts into X minus and XO3 minus, means halide ion, and if you have Cl, then it will be chlorate ion, like halate ion you can say. If you have chlorine in presence of NaOH, hot and concentrated. Hot and concentrated means chlorine plus NaOH. Hot and concentrated NaOH. Then product will be NaCl plus NaClO3 and water, 3 water. So the main product will be sodium chlorate, NaClO3. When CaOH whole 2 reacts with chlorine, so CaOH whole twice when reacts with chlorine, it will form bleaching powder, CaOCl2. So correct answer will be NaClO3 and bleaching powder CaOCl2. But student, we don't have here option bleaching powder CaOCl2. So there is one more reaction. Here we need heat, but here we don't have heat. So when calcium hydroxide reacts with chlorine but no heat ना, कोल्ड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोल्ड सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाएगा, एक तो CaCl2 प्लस बनेगा वाटर प्लस बनेगा CaOCl2. दिस इज कैल्शियम जीपोक्लोराइड प्लस वाटर, H2O एलिमिनेट हो गया, CaO 2 times and Cl and CaCl2. This is calcium gypochloride. So correct answer will be sodium chlorate and CaOCl whole 2. So correct answer will be second. Moving to next question. Question number 5. Preparation of bakelite proceeds via reaction. So we have here 4 types of mechanism. So students, bakelite कैसे बनाएंगे? Bakelite कैसे बनेगा? When formaldehyde reacts with phenol. Formaldehyde reacts with phenol in presence of acid or base. In presence of acid or base. Then we see it forms ortho and para hydroxy benzyl alcohol. Ortho and para hydroxy benzyl alcohol. So students, phenol, you know phenol shows ortho para electrophilic substitution reaction, है ना. अगर हम ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये नेगेटिव ये इधर आ जाएगा, ठीक है. ये नेगेटिव चार्ज जो है फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये यहाँ अप्रोच करेगा, तो ये रिएक्शन. तो फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एंड आफ्टर दैट बेकेलाइट कैसे बनेगा? तो ये आपने जो बनाया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये फर्दर रिएक्ट करेगा इस तरह से, और क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये आगे चलता जाएगा. तो पहले तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड आफ्टर दैट वाटर एलिमिनेशन मींस डिहाइड्रेशन. सो करेक्ट आंसर इज electrophilic substitution and then dehydration. So next question is question number 6. Radial nodes present in 2s and 2p orbitals are respectively. So students, we have two types of nodes, spherical nodes and non-spherical, means radial nodes. So formula of radial nodes is n minus l minus 1. So for 2s orbital, L is 0, then 2 minus 0 minus 1, means
For 2s orbital, there is one radial node. And for 2p orbital, 2 minus p orbital के लिए L की वैल्यू है 1. So 2 minus 1 minus 1. So answer will be 0. So radial nodes are 1 and 0 and correct answer is second. So next question is the freezing point of equimolal aqueous solution will be highest for. So students, equimolal means equal molality. तो मोलालिटी तो इन सबका सेम है. अब फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट बताना है. हमने पढ़ रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी. सो स्टूडेंट्स, मोलालिटी इक्वल है, एक्वस सॉल्यूशन है तो के एफ भी सेम है, यानी कि डेल्टा टीएफ जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा आई पे. आई इज वेंट ऑफ फैक्टर, है ना. एसोसिएशन कितना हो रहा है, डिसोसिएशन कितना हो रहा है. तो फर्स्ट देखो बच्चों, यहां पे डिसोसिएशन होगा, यहां भी डिसोसिएशन है, यहां पे भी डिसोसिएशन है. हियर नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन. अब आप देखो आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा. डेल्टा टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में उतनी कमी आएगी. तो मुझे तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा देखना है, तो टीएफ ज्यादा कब होगा, जब आई की वैल्यू क्या होगी, कम. क्योंकि आई बढ़ेगा तो डिप्रेशन बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी. हमें क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा, जब आई की वैल्यू कम होगी. अब स्टूडेंट्स, ये एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ये डिसोसिएट होगा तो एनिलीन अलग और HCl अलग. तो यहां पे आई आपके पास है 2. मैग्नीशियम नाइट्रेट डिसोसिएट होगा तो मैग्नीशियम +2 एंड 2 नाइट्रेट आयन मींस आई इज 3. लैंथेनम नाइट्रेट तो लैंथेनम +3 एंड 3 नाइट्रेट आयन मींस आई की वैल्यू है 4. और यूरिया नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, सो वेंट ऑफ फैक्टर इज 1. So lesser the I value, highest will be freezing point. So correct answer is 4th, urea. So question number 8 is cyclopentane and we have chloromethane. What happens with AgNO3 and then it is heated, X को identify करना. अब students AgNO3 क्या करेगा, AgNO3 Cl- को बाहर निकाले ताकि AgCl बन के precipitate हो जाए. After that we will find cyclopentanol and carb cation CH2 plus. And we know if there is carb cation near to ring then it will come inside the ring and ring expansion हो जाएगी. तो अगर ये carb cation आपका रिंग में आ गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया, कैसे होगा, तो देखो अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दूं, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट करते ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ये OH वाला कार्बन ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे. तो ये 5 कार्बन की जगह आपका रिंग हो गया 6 कार्बन. अब देखो ये जो है ये OH, ये बना दिया मैंने OH, यहाँ पे क्या है, कार्ब कैटायन, ये बीच में आ गया CH2 प्लस माइनस न्यूट्रल, तो ये आपका CH2 और ये CH2. क्लियर. आफ्टर दैट दिस इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. यू नो, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, है ना, ऑक्सीजन अपना लोन पर इधर शिफ्ट कर देगा. देन वी विल फाइंड इंटरमीडिएट लाइक दिस OH प्लस. देन प्रोटॉन एलिमिनेट कर दो आप, तो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट हो जाएगा, प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस एंड दिस इज cyclohexanol. So correct answer is cyclohexanol, answer C. So question number 9, a solid is formed and it has 3 types of atoms P, Q and R. P forms FCC lattice with Q atoms occupying tetrahedral voids and R atoms occupying half of the octahedral void. What is the formula of solid? So students, P जो है P is forming FCC lattice. तो P अगर FCC lattice बनाएगा तो lattice में फर्स्ट एलिमेंट्स हम प्लेस करेंगे कॉर्नर एंड FCC lattice है means 6 faces and contribution is half.
8 particles at 8 corner, contribution is 1 by 8, 6 particle at the center of each face and the contribution is 1 by 2. So number of p atom, it is 4. Then Q. Q कहाँ पे? Q occupy tetrahedral void. अब आपको पता है एक बॉडी डायगोनल पे 2 tetrahedral void होते हैं. So there are 4 body diagonal in a cube and each have 2 tetrahedral void. Means number of Q atoms is 2 into 4. So this is 8. Now R. R atoms occupy half of the octahedral void. अब octahedral void कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर पे और एज सेंटर पे. एजेस कितने हैं? 12. कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 by 4. यानी कि 3 प्लस बॉडी का सेंटर 1 एंड फुल्ली कंट्रीब्यूटेड 1 into 1. लेकिन 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने के बाद भी ये कह रहा है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. मींस जितने आपके पास है उसके आधे ही फिल कर रहा है. यानी हमारे पास तो 4 है और उसका आधा ही फिल कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ आर एटम्स हो गया 2. सो P Q R. P ratio Q ratio R means 4, 8 and 2. So this is 1, this is 4, this is 2. So answer will be P2, Q4 and R. So correct answer is 4th. So question number 10th is, which of the following statements regarding Henry's law is not correct? यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखने, कोई 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है तो आपको ध्यान से हेनरीज लॉ को चेक करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ KH चेंजेस विद फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस. गैस चेंज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड. सो स्टूडेंट्स हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ है प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mole fraction of the gas in liquid state. तो P gas proportional to X gas and P gas equals to KH X gas. Now students, higher the value of KH, higher will be pressure. Then अगर आप ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे. So KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. आपसे पूछा हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर आएगा. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन. यानी पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? P गैस वेपर फेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन के अंदर. तो ये तो करेक्ट है. डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ये हमने देखा था है ना. अलग अलग गैसेस हैं तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है. तो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. 6 mole of a mixture of Mohr salt and ferric sulfate requires 500 ml of 1 m of K2Cr2O7 for complete oxidation in acidic medium. The mole percent of the Mohr salt in the mixture is. So student, Mohr salt जो है that is, Mohr salt क्या है? Mohr salt है ferrous ammonium sulfate. This is ferrous sulfate, ammonium sulfate dot 6H2. ओके. नाउ अगर मोहर सॉल्ट और इस मिक्सचर की रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराएं तो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी. क्या होगा? तो हम कहेंगे डाइक्रोमेट मींस Cr2O7-2 प्लस फेरस हो गया Fe+2. तो डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम +3
and ferrous is going to convert into ferric. अब स्टूडेंट्स यहाँ ऑलरेडी फेरिक सल्फेट है, मींस ये आपका K2Cr2O7 से रिएक्शन नहीं करने वाला, क्योंकि फेरस इज गोइंग टू कन्वर्ट इन फेरिक, देन वी हैव ऑलरेडी फेरिक, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब हमें देखना है फेरस और डाइक्रोमेट में कितने कितने मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स बैलेंस कीजिए, डाइक्रोमेट क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी हमें वाटर वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, हम पूरा इक्वेशन सिर्फ इनके अकॉर्डिंग बैलेंस कर रहे हैं। तो डाइक्रोमेट में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, मींस डिक्रीजेस बाय 3, बट क्रोमियम यहां 1 है, यहां पे सॉरी यहां क्रोमियम 2 है, तो ये 2 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 6। 1 पे 3 का चेंज आया तो 2 पे कितने का चेंज आएगा, 6 का। सिमिलरली फेरस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस बाय 1। अब इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करना पड़ेगा, तो ये 6 है, ये 1 है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 6 Fe+2 कन्वर्टिंग इनटू 6 Fe+3। अब स्टूडेंट्स 1 मोल डाइक्रोमेट पे वी नीड 6 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट। तो डाइक्रोमेट की मोलारिटी और वॉल्यूम गिवन है। मोलारिटी क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम होना चाहिए लीटर, तो मोलारिटी इज 1 और मोल कितना है, मोल हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम है 500 ml मींस 0.500 लीटर। अब क्या करेंगे, तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं, तो मोल हो गया हमारे पास 0.5 मोल, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो मोल है दैट इज 0.5 मोल। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम चेक करें तो डाइक्रोमेट अगर 1 है तो फेरस कितना चाहिए या FAS कितना चाहिए, 6 मोल। इफ वी हैव डाइक्रोमेट इक्वल्स टू FAS की बात करें तो अगर ये आपके पास 1 मोल है तो FAS कितना चाहिए, 6 मोल, बट क्वेश्चन में जो डाइक्रोमेट आयन है वो हमारे पास 0.5 मोल मींस हाफ है, तो इसको भी हाफ कर देंगे, सो इट इज 3 मोल। तो फेरस अमोनियम सल्फेट हमारे पास आ गया 3 मोल। और स्टूडेंट जो टोटल मिक्सचर था दैट इज 6 मोल, और 6 मोल में क्या था, फेरस अमोनियम सल्फेट मींस मोहर सॉल्ट और फेरिक सल्फेट दोनों थे, तो पूरा मिक्सचर 6 मोल था, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसमें 3 मोल क्या है, मोहर सॉल्ट है। तो आपसे पूछा है मोल परसेंट ऑफ द मोहर सॉल्ट इन द मिक्सचर, तो मोहर सॉल्ट कितना है 3 मोल, टोटल मिक्सचर कितना है 6 मल्टीप्लाई विद 100, सो पूरे मिक्सचर में मोहर सॉल्ट जो है दैट इज 50%, सो आवर करेक्ट आंसर इज 50%, ऑप्शन नंबर बी। So next question is number of aldol reactions that occurs in the given transformation is acetaldehyde, 4 molecules of formaldehyde in presence of concentrated NaOH and the product is like this। आपको बताना है total number of aldol reaction कितनी हुई है। So students formaldehyde it doesn't have alpha hydrogen, सो एल्डोल कंडेंसेशन आपको क्लियर है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिल कंपाउंड के लेने पड़ते हैं, 1 मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप, अनदर का अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मींस फॉर्मल्डिहाइड का हमें फंक्शनल ग्रुप लेना है। अब जब फॉर्मल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप यानी इस तरह से, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, अल्फा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड का, इस तरह से अगर आप रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, यहाँ पे है कंसेंट्रेटेड NaOH, जरूर कोई रोल होगा इसमें, तो देखो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन गोज टू O, इट विल OH एंड ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। सो आपके पास कंपाउंड है CH2 OH देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड H। अब यहां तो आप नहीं पहुंचे हो, अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन और है, तो हम इसकी रिएक्शन फिर से फॉर्मल्डिहाइड से करा लेते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड के
फंक्शनल ग्रुप के साथ लग जाएगा तो ये CH2OH एक बार और आ जाएगा। तो इस बार जो कंपाउंड है वो है CH2OH, यहाँ पे भी हो जाएगा CH2OH एंड C डबल बॉन्ड OH। अब एक बार और एक अल्फा हाइड्रोजन और है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन और है तो हम एक बार और इसका एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं। ये नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, अल्फा हाइड्रोजन H प्लस यहाँ से कनेक्ट कर दूं, ये C आपका पॉजिटिव, इस कार्बन नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज लाइक दिस, CH2OH, देन CH2OH, अगेन CH2OH एंड C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चों अभी तक भी हम यहां नहीं पहुंचे, अब एल्डोल यहां कंप्लीट हो चुका है। अब कंसंट्रेटेड NaOH और आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो याद करो अल्फा हाइड्रोजन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड गोस थ्रू कंसंट्रेटेड NaOH, केनिज़ारो रिएक्शन। तो केनिज़ारो में क्या होगा, ये आपका जो एल्डिहाइड है ये हो जाएगा रिड्यूस्ड और फॉर्मल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हमने 3 फॉर्मल्डिहाइड काम में लिए 1 by 1। देखो 1 2 एंड 3, तो टोटल 4 फॉर्मल्डिहाइड थे, तो 3 तो हो गए एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू यहां। अब आपके पास 2 एल्डिहाइड है ना, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कंसंट्रेटेड NaOH। सो रिएक्शन इज केनिज़ारो रिएक्शन और इस तरह का कंपाउंड है जो कंपैरेटिवली उससे लेस रिएक्टिव है, तो ये आपका होगा रिड्यूस्ड और फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। तो अब अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से कंपाउंड लाइक OH एंड OH एंड ये क्या हो जाएगा CH2OH। सो ये कंपाउंड यानी कि ये, लेकिन यहां से यहां पहुंचने में केनिज़ारो हुई एक बार और एल्डोल कंडेंसेशन हुआ 3 बार। तो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस, जो कि यहां से यहां पहुंचने में होगी, तो इट विल बी 3 टाइम्स। नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस विल बी 3 टाइम्स। सो करेक्ट आंसर इज बी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, total number of lone pairs of electrons in N2O3। अब N2O3 जो है इसका स्ट्रक्चर हमें क्लियर होना चाहिए। N2O3 is the combination of NO and NO2। तो NO and NO2, NO2 क्या हो गया, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा N और O के बीच में, so O will be negative and it is positive, and ये हो गया NO2 and NO, तो N डबल बॉन्ड। नाउ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, मतलब सारे एटम्स पे गिन के आपको लोन पेयर बताने हैं। अब सारे एटम्स पे गिन के आप लोन पेयर बताओ, तो ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर्स, नाइट्रोजन इज containing here 1 lone pair, so again oxygen atom 2 lone pair, and अब देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, तो एक लोन पेयर जो नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया और ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर होते, तो टोटल लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So total number of lone pair is 8. So students, next question is question number 14. Amylopectin is composed of. Now what is amylopectin? Amylopectin is the part of starch. Starch के स्ट्रक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अल्फा अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन, बीटा अमाइलोज भी कह सकते हैं। अब अल्फा अमाइलोज जो है स्टार्च का 20% पार्ट बनाएगा, अमाइलोपैक्टिन जो है वो 80% पार्ट बनाएगा। नाउ अमाइलोपैक्टिन जो है वो ब्रांच्ड होता है। अब ब्रांच्ड होता है तो जो ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर है, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, C1 C2 C3 C4 एंड C5 एंड दिस इज C6। ये हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब अगर हम पॉलीमर की बात करें तो ये H और ये O और यहाँ पे भी ये O, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है अमाइलोपैक्टिन। लेकिन अमाइलोपैक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड भी होता है। अब ब्रांच्ड मतलब ये जो C1 है इसकी ब्रांचिंग जो है वो C6 के साथ होती है, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6।
ये जो है 1 और 6 लिंकेज आपस में होता है, और दूसरे ग्लूकोज के साथ 1 और ये 4, और ये दूसरे ग्लूकोज के साथ अगेन 1 के साथ बॉन्डेड है। तो C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है, साथ साथ में क्या है 1 और 6 लिंकेज भी है। ये होगा अमाइलोपेक्टिन में। तो अमाइलोपेक्टिन में बेसिक यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, C1 C4 लिंकेज है, एज इट इज C1 C6 लिंकेज है ब्रांचिंग के थ्रू। सो करेक्ट आंसर इज 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, an acid base indicator has Ka equals to 3 into 10 to the power minus 5. The acid form of the indicator is red and the basic form is blue. By how much must the pH change in order to change the indicator from 75% red to 75% blue? And log 3 is 0.4770. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इंडिकेटर का Ka दिया है, मीन्स इंडिकेटर जो है वो वीक एसिडिक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर के पीएच का जो फॉर्मूला है दैट इज पीएच इक्वल्स टू, एसिडिक इंडिकेटर है दैट्स व्हाई pKa प्लस लॉग। अगर हेंडरसन इक्वेशन होती तो आप लिखते सॉल्ट अपॉन एसिड, लेकिन इंडिकेटर है तो हम यहाँ लिखेंगे आयोनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयोनाइज्ड पार्ट। आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। अब हुआ क्या, तो इंडिकेटर जो है वो एसिड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर रेड है, तो अनआयोनाइज्ड पार्ट तो उसका रेड हो गया, और बेसिक फॉर्म में ब्लू आया, मींस आयोनाइज्ड पार्ट उसका ब्लू है। अब स्टूडेंट्स यहां देखो, इंडिकेटर का पीएच चेंज बताना है 75% रेड से 75% ब्लू, मींस pH 1 और pH 2 फाइंड कर लेते हैं और फिर चेंज बताना दोनों के बीच में। अब pKa, एक बार मैंने pKa रख दिया, प्लस लॉग। अब पहले 75% रेड है, मतलब अनआयोनाइज्ड पार्ट 75% है और आयोनाइज्ड पार्ट कितना हो गया 25%। तो pH 1 इक्वल्स टू pKa प्लस 75% रेड, यानी आयोनाइज्ड हो गया 25 और अनआयोनाइज्ड हो गया आपका 75। सिमिलरली pKa तो वही रहेगा प्लस लॉग। अब 75% ब्लू, मतलब आयोनाइज्ड पार्ट 75% है और अनआयोनाइज्ड पार्ट 25% है, तो 75 डिवाइडेड बाय 25। सो दिस इज log 3 एंड दिस इज log 1/3। नाउ चेंज इन pH बताना है, तो pH 2 माइनस pH 1, pKa माइनस pKa कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज log 3 माइनस log 1/3। अब log 1/3 को हम लिख सकते हैं log 3 टू द पावर माइनस 1। सो log 3 की वैल्यू आपके पास है 0.4770 माइनस अगेन माइनस एंड log 3 की वैल्यू है 0.4770। So 0.4770 plus 0.4770 means it will be approx 0.950. So correct answer is 0.954. So next question number 16. If the dipole moment of AB molecule is given by 1.6 D and A single bond B bond length is 1 angstrom, then calculate percentage covalent character of the bond. So students, percentage ionic character का फॉर्मूला आपको याद होगा म्यू से। percentage ionic character equals to mu observed divided by mu calculated into 100. Now mu calculated, mu का फॉर्मूला क्या है Q into D। नाउ ए बी में A प्लस बी माइनस, तो चार्ज आपका 1 है, लेकिन डिबाई है तो ESU यूनिट लिखनी, ESU इंटू सेंटीमीटर, तो चार्ज जो होगा दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU एंड D डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू द पावर माइनस 8। तो ये आ गया 4.8
into 10 to the power minus 18 ESU into centimeter which is equal to divide. तो 10 to the power minus 18 ESU into centimeter is divide. तो 4.8 आ गया कैलकुलेटेड. ऑब्जर्व म्यू है 1.6, तो परसेंट इज आयोनिक कैरेक्टर. तो म्यू ऑब्जर्व्ड इज 1.6, म्यू कैलकुलेटेड इज 4.8 into 100 means 1 by 3, 100 by 3 equals to 33.3%. But this is ionic character. We need percentage of covalent character. So percentage of covalent character will be 100 minus 33.3. So it will be approximately 66.6. So correct answer is C. Next question, question number 17. Which of the following statement is not correct? Means incorrect statement बताना है. Generally, Tollens reagent is used in the detection of unsaturation. Wrong? Unsaturation के लिए हमारे पास क्या होता है? Bayer's reagent हो सकता है, bromine water हो सकता है. Tollens reagent gives silver mirror with carbonyl compound. Second, Fehling solution is used to detection of glucose. Correct? Aldehyde group के लिए Fehling solution use हो सकता है. Neutral FeCl3 is used in the detection of phenol. ये भी correct. Phenol FeCl3 के साथ complex बनाता है. Next, sodium bisulfite is used in the detection of carbonyl compound. So all carbonyl compound, methylated carbonyl compound gives white crystalline solid with sodium bisulfite. So second, third and fourth are correct. So incorrect statement is option 1. So next question number 18 is match list 1 substances with list 2 processes employed in the manufacture of the substances and select the correct option. So students, यहाँ compound है, यहाँ इनकी preparation process का name दिया हुआ है. अब आपको जितने मैचिंग क्लियर है उतने आप करके आंसर निकालने के बारे में सोचो. तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड, वी नो सल्फ्यूरिक एसिड रिलेटेड विद कांटेक्ट मेथड. सो फर्स्ट का आंसर फोर्थ होना चाहिए, मींस ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो नहीं है. देन नाइट्रिक एसिड रिलेटेड टू ओस्टवाल्ड मेथड एंड अमोनिया इज रिलेटेड टू हेबर्स प्रोसेस, तो ये अपने आप हो जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लीब्लैंड प्रोसेस. सो फर्स्ट के लिए फोर्थ चाहिए, थर्ड फोर्थ दोनों में है. सेकंड के लिए सेकंड चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन फोर्थ में मिल रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ N single bond CH2 single bond N bonds in urotropine. So students, urotropine amino form, it is hexamethylene tetraamine. जब आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो ये बनाएगा यूरोट्रोपिन, यूरिनरी डिजीज में काम आता है. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज हेक्सामेथाइलिन CH2 टेट्राएमीन N4. और स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है, N N N N. अब कोई भी जो दो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट बॉन्डेड नहीं है, उनके बीच में है CH2. So here CH2, CH2, again CH2, CH2, CH2 and here also we have CH2. तो कोई भी दो नाइट्रोजन को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है, बीच में CH2. Now you can calculate N CH2 N bond. So N CH2 N CH2 N bond. So ये आपका हो गया 1 बॉन्ड, अगेन 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, 5 and 6. So N CH2 N bonds are 6. So correct answer is option number C. So next question is question number 20th. In a compound C, H and nitrogen, atoms are present C, H and nitrogen. Atoms are present in 9:1:3.5, means 9, 1, 3.5. Molar mass of the compound is 108. Molecular formula बताना है. So
First we will find empirical formula. So 9, 1, 3.5. Find the moles. तो moles का formula है given mass upon atomic mass 1 by 1 and 3.5 divided by 40. So this is 3 by 4. This is 1. This is 1 by 4. Okay? Then C ratio H ratio N. 3 by 4 ratio 1 ratio 1 by 4. 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल रेशियो आ जाएगा. So it will be 3 ratio 4 ratio 1. So empirical formula is C3H4N. This is empirical formula. Find empirical mass. तो empirical mass carbon का 12 multiply with 3, then hydrogen 1 into 4 and nitrogen is 14. So 40. So this is 36 plus 4 plus 14 यानी कि ये हो गया आपका 54. अब ये है empirical mass. आपको क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला देन होल है. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो है ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, एन फाइंड करना है आपको. तो एन जो है दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास. नाउ व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज 108. So molar mass 108. Empirical mass is 54. So 54. So n का वैल्यू है 2. So molecular formula क्या होगा? तो हम कहेंगे जो empirical formula होगा whole 2. तो empirical formula है C3H4N और whole 2 कर दो तो C6H8N2. So correct answer is third, C6H8N2. So question number 21. Calculate standard free energy change for the reaction. Twice Ag plus 2H plus gives H2 plus 2Ag plus. And E naught Ag plus Ag is 0.80 volt. So we have to calculate free energy change means delta G. Delta G is minus NF E naught cell. Minus NF E naught cell. Now what is E naught cell? E naught cell is E naught oxidation plus E naught reduction. Now in the given reaction, oxidation reaction क्या हो रहा है? तो देखो oxidation Ag से क्या हो रहा है? Ag plus. तो E naught Ag Ag plus और E naught reduction तो हाइड्रोजन है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पता ही है E नॉट शी कितना होता है 0 या H प्लस H2 0. सो E नॉट सेल जो है इट विल बी Ag प्लस. गिवन क्या है? Ag प्लस Ag. साइन चेंज कर देंगे तो 0.80 पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव 0.80 वोल्ट. दिस इज E नॉट सेल. We have to find delta G, standard free energy. So delta G is minus N is number of transferred electron. तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 है ना. ट्वाइस Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्वाइस HNH2 में कन्वर्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन 2. F Faraday constant 96500 and E naught cell is माइनस का 0.80. So it will be coulomb into volt means joule. आपको आंसर किस में चाहिए? किलो जूल. तो डिवाइड बाय 1000 इट विल बी इन किलो जूल. तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस तो डेल्टा जी हो जाएगा 2 इंटू 965 मल्टीप्लाई विद 0.80 डिवाइडेड बाय 10.
अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड अप्रोक्सीमेटली 154.4 किलोजूल. This is the answer of this question. So students, it was the first half part of our NTA paper 84 for NEET. Remaining half part we will discuss in our next video. So please keep watching.